हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। मैं फैकल्टी आपका जावेद हक एंड लेट्स कंटिन्यू today's session related to our UPSC Civil Services Examination summer batch. And for the first three lectures, we have already talked about history of architecture and sculpture in our country during ancient and Middle Ages. तो अब तक हमने पढ़ा architecture or sculpture, and we have already concluded our discussions related to Mauryan and post-Mauryan architecture and sculpture, temple architecture and sculpture. And in our previous session, we had talked about Indo-Islamic architecture. And today in this session, we are going to talk about another aspect of visual art, that is the history of painting in India. So history of painting in India, it goes back to around 34,000 years back, when people or our forefathers who were of different species but of same genus, Homo Neanderthals or Homo Cro-Magnons or Homo Narmadensis, people who had inhabited Narmada Valley around 30 or 40,000 years back. तो तकरीबन हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया, भारत में पेंटिंग का हिस्ट्री तकरीबन ये 34-35 हजार साल पहले चला जाता है। और सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका की केव्स, और उन केव्स में रहते थे आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज लोग, जो जीनस तो हमारा और उनका सेम है बट स्पीशीज सेम नहीं है। ऑल ऑफ अस वी आर होमो सेपियंस, बट वी आर एक्चुअली लेटेस्ट होमो सेपियंस। सो वी आर होमो सेपियंस sapiens, while homo is our genus and sapiens is our species, and we use another sapiens for subspecies. तो we are latest homo sapiens, और हमारे से पहले वाले homo sapiens वो आर्काइक होमो सेपियंस थे, पुराने वाले होमो सेपियंस थे। जैसे यूरोप में होमो सेपियंस निएंडरथल्स एंड होमो सेपियंस क्रोमैग्नन्स, और हमारे यहाँ होमो सेपियंस ऑफ नर्मदा वैली कॉल्ड होमो सेपियंस नर्मदेंसिस। सो let's talk about history of painting in our country and as a part of visual art. ठीक है, तो फिर history of painting in India, which actually includes wall painting or mural painting and of course miniature painting. और जिसकी बात हम कर रहे हैं कि history of painting in India, it goes back to around 34,000 years back. So they were actually archaic Homo sapiens, and they had inhabited rock cut caves. Rock cut caves में रहते थे। तो rock cut artificial caves और natural caves। तो ये रॉक आर्ट बोला जाएगा ना, रॉक आर्ट पेंटिंग ही है, रॉक आर्ट बोला जाएगा। एंड वी हैव रिकवर्ड नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, number of samples of prehistoric painting, but mainly from Bhimbetka rock shelters. So Bhimbetka is a place which is not very far from भोपाल। भोपाल के आसपास पड़ेगा भीमबेटका। तो भीमबेटका से तकरीबन 642 रॉक शेल्टर्स मिले हैं, एंड आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 642 रॉक शेल्टर्स, more than 400 of which contains specimens of wall painting. These are the wall paintings we have recovered from Bhimbetka caves.
And the history of cave painting in India or rock art ranges from drawing, sketching, and paintings from prehistoric times, beginning around 30,000 years before Jesus Christ, which means 32,000 years back, in the caves of central India, typified by those at Bhimbetka rock shelters, to elaborate frescoes. Frescoes का मतलब होता है कि ऐसा वॉल पेंटिंग जो गीले वेट सरफेस पे पेंट बेस जब हल्का सा गीला होता था और पेंटिंग करते थे तो उसको फ्रेस्कोस बोला जाता है। जैसे अजंता और एलोरा की केव्स है ना, तो अजंता और एलोरा की केव्स पे पहले पेंटर्स दीवार पे प्लास्टर लगाते थे और प्लास्टर जब हल्का सा गीला होता था तभी पेंटिंग कर देते थे। वो रॉक पाउडर से, चट्टानों का चूरा रगड़ पाउडर बनाते थे, स्टोन पाउडर, स्टोन डस्ट से पेंटिंग करते थे और गीले सरफेस पे। तो रॉक शेल्टर्स से लेकर के फ्रेस्कोज ऑफ अजंता और एलोरा, इसे हम ऐसे ले सकते हैं कि अराउंड 32,000 ईयर्स बैक शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से होते हुए हम आते हैं फ्रेस्कोस ऑफ अजंता एंड एलोरा, और ये हैं अराउंड 2000 ईयर्स बैक। तो फ्रेस्कोस, तो प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग्स यहां पे स्केचिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, प्री हिस्टोरिक से लेकर के फ्रेस्कोस ऑफ अजंता एंड एलोरा, ये 2000 साल पहले शुरुआत होती है अजंता के गुफाओं में। व्हेन अजंता पेंटर्स स्टार्टेड रेंडरिंग पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा केव्स, अजंता केव्स। तो अजंता पेंटर्स of 2000 years back, what exactly they did to paint the walls? They, for the first, rendered walls of the caves even. देखिए, गुफा की दीवार उबड़ खाबड़ होती है, तो रगड़ रगड़ के दीवार को प्लेन किया, इवन बनाया, अनइवन सरफेस को इवन सरफेस में कन्वर्ट किया, एंड देन अगेन सरफेस वाज मेड रफ। तो जब गुफा की दीवार सपाट हो गई, प्लेन हो गई, तो उसको खुरदुरा खुरदुरा बनाया। खुरदुरा इसलिए बनाया, रफ बनाया, ताकि जो प्लास्टर चिपकाएंगे दीवार पे, पेंट बेस चिपकाएंगे, वो आराम से दीवार पे रीइंफोर्स हो जाए, चिपक जाए। और पेंट बेस के लिए तो यहां पर तो नहीं, लेकिन यहां पर इस्तेमाल होता था पेंट बेस, और पेंट बेस के लिए गाय का गोबर, गेहूं का भूसी, वीट हस्क, काउ डंग, वीट हस्क, चूना पत्थर, लाइम सॉइल, ये लेते थे और इसमें मिला देते थे प्लस बाइंडिंग मीडियम यानी कि गोंद, ग्लू। तो उस जमाने में फेविकोल का मजबूत जोड़ तो नहीं है, लेकिन सोचिए कि कैसे गोंद लाते होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं छोड़ दे रहा हूं, आप लोग को देखता हूं क्या बता पाते हैं कि जब फेविकोल का मजबूत जोड़ नहीं है तो पेंट बेस या प्लास्टर के लिए जो बाइंडिंग मीडियम, स्टिकी सब्सटेंस था, वो कहां से प्रोक्योर किया करते थे। देखता हूं कितने लोग बताते हैं। ठीक है, पास में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है सारे क्वेश्चंस का, और एनलाइटन किया है हम सबको फिर से
इसमें भी बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा, तो प्लीज जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा, इससे हम सबको हेल्प मिलती है। तो ये पेंट बेस बनाते थे, और पेंट बेस जब हो जाता था तो इसमें दो तरीके से पेंटिंग करते थे। एक टेक्निक था जिसको हम ना और आप कहते हैं फ्रेस्कोस, और दूसरा टेम्पेरा, टीएमपी, टेम्पेरा, फ्रेस्कोस और टेम्पेरा। तो फ्रेस्कोस ना वेट प्लास्टर पे किया जाता था, गीला गीला प्लास्टर पे, बाइंडिंग ये गीले प्लास्टर पे किया जाता था, और टेम्पेरा एकदम ड्राई पेंट बेस या प्लास्टर पे किया जाता। तो अजंता और एलोरा वॉल पेंटिंग्स में, या जिन्हें हम लोग वॉल पेंटिंग बोले या बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग और म्यूरल पेंटिंग बोलिए, ये दो टेक्निक पे हैं। एक जिसको हम नाम दे रहे हैं फ्रेस्कोस, and another type of painting which was rendered on the walls called tempera. तो फ्रेस्को टेक्निक में पेंटिंग रेंडर किया जाता था, पेंट किया जाता था जब प्लास्टर हल्का सा गीला होता था, वेट प्लास्टर, तब किया जाता था। और जब प्लास्टर पूरा सूख जाता था, when the paint base or plaster was completely dried, and then only painting was rendered. So that technique of Ajanta or Ellora or any kind of wall painting is what we refer to as tempera painting. तो अजंता एलोरा के पेंटर्स दो टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, फ्रेस्कोस और टेम्पेरा। और जो बहुत पहले था वो तो सीधे दीवार पर स्केचिंग या ड्राइंग या पेंटिंग करते थे, और यहां से यहां तक पूरे में इस्तेमाल किया गया है मिनरल कलर्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्टोन रॉक्स। तो ये डिफरेंट कलर के रॉक पाउडर का इस्तेमाल करते थे, रॉक पाउडर पेंटिंग के लिए। अब वो क्रेयॉन्स थोड़ी या पेंसिल स्केच थोड़ी था, या आज की तरह ऑयल पेंटिंग थोड़ी होता था। तो उस जमाने में चट्टानों का चूरा, रॉक डस्ट या रॉक पाउडर इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे शुरुआत हुई है। तो वॉल पेंटिंग को बोलते हैं, ये वॉल पेंटिंग जब दीवार पे डायरेक्ट किया गया ना, वो वॉल पेंटिंग या म्यूरल पेंटिंग है। और जब कपड़े पे, कागज पे या ग्लास पैनल पे किया गया तो उसको मिनिएचर पेंटिंग बोला गया है। सो ऑल टुगेदर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स वर रेंडर्ड इन आवर कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट kind of painting which was rendered right from very beginning was called wall painting or mural painting, and around 1000 years back, हमारे से अभी से 1000 years back, a kind of painting when painters started evolved, when painters started rendering painting on cloths, glass panel और पेपर, तो उसे बोला गया मिनिएचर पेंटिंग। तो कितने तरीके का पेंटिंग आ जाएगा हमें पढ़ना होगा, वॉल पेंटिंग और म्यूरल पेंटिंग एज वेल एज मिनिएचर पेंटिंग। तो इस तरह की ड्राइंग, स्केचिंग या पेंटिंग ये बहुत साल पहले किया गया था। 32 और 34 हजार साल पहले ये रॉक पेंटिंग्स किए गए थे, रॉक पेंटिंग्स। और ये पुराने वाले होमोसेपियंस थे, आर्काइक होमोसेपियंस। मैंने आपसे बोला कि वी आर लेटेस्ट होमोसेपियंस, तो ये करीब आर्काइक होमोसेपियंस 2-2.5-3 लाख साल पहले हुआ करते थे। आर्काइक होमोसेपियंस में ही कुछ होमोसेपियंस 32-34 हजार साल पहले नर्मदा वैली में रहा करते थे, और वो भीमबेटका के गुफाओं में रहते थे, 642 रॉक शेल्टर्स में। उन्हीं में से 400 के आसपास पे दीवारों पे उन्होंने पेंटिंग रेंडर किया पत्थर से, उसी को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। और इसी में खुद को वो डांस वांस करते हुए भी दिखा रहे हैं। और इन्हें इसीलिए जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है ना, उसको वर्ल्ड हेरिटेज
साइट डिक्लेयर किया गया था 2003 में। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स has already been declared as a World Heritage Site in 2003 because of remarkable achievement of our forefathers when they had inhabited Bhimbetka caves around 34-35,000 years back, and they had rendered wall paintings on the caves of Bhimbetka caves and depicting themselves. And we get actually not only hunting scenes, तो हमें हंटिंग के खास तौर पे सीन्स मिलते हैं, डांसिंग एंड एनिमल्स एंड पोर्ट्रेइंग देमसेल्स, खुद को दिखाना, पोर्ट्रेइंग देमसेल्स बट एज मैच स्टिक मैनर। तो खुद को कैसे बनाया पेंट में, ऐसे पेंट किया और खुद को ऐसे दिखा रहे हैं। ये मैचस्टिक मैन के तौर पे दिखाया गया है, माचिस की तीली के जैसे अपने आप को दिखा रहे हैं। तो हंटिंग सीन है, डांसिंग है, एनिमल्स का डिपिक्शन है, पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स लाइक मैचस्टिक मैन। तो ये कुछ इस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं। यहां पे देखिएगा, ये कुछ इस तरह से बना दिया और ये तीर धनुष बना दिया, शिकार उकार भी कर रहे हैं, जानवर भी बनाया, ये बना दिया, कुछ घोड़े जैसा भी बना रखा है। तो बनाया, ठीक ठाक छोड़ गए हमारे लिए कि पढ़ते रहिएगा आप लोग। और ये यूरोप में, मैंने आपको बताया यूरोप में जो होमोसेपियंस थे, होमोसेपियंस, निएंडरथल्स या होमोसेपियंस, क्रोमैग्नन्स, या फिर हमारे यहां होमोसेपियंस नर्मदेंसिस। तो यही लोग पेंटिंग, ये वॉल पेंटिंग या म्यूरल पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रेंडर किया करते थे। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे, आई हैड रेंडर्ड दिस पेंटिंग अराउंड 34,000 ईयर्स बैक। ठीक है, तो यही इसी को प्री हिस्टोरिक बोला जा रहा है। तो हमारे कंट्री में जो लोग ये रेंडर किए हैं उनको हम कह रहे हैं होमोसेपियंस होमोसेपियंस नर्मदेंसिस ऑफ नर्मदा वैली। और इसके बाद देखिए दो तरीके का पेंटिंग हमारे कंट्री में उभरता है, टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, जिसमें एक होता है म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग, और दूसरा मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग which is originated around 1000 years back, हमारे से 1000 years back। और म्यूरल या वॉल पेंटिंग ये चला जाएगा तकरीबन 34,000 ईयर्स बैक। और इसके स्पेसिमेन हमें कहां से मिल रहे हैं, भीम बेटका रॉक शेल्टर से मिल रहे हैं। मिनिएचर ये हमें पाला रूलर्स ऑफ बिहार एंड बंगाल अराउंड 1000 ईयर्स बैक ये शुरुआत करते हैं, या फिर वेस्टर्न इंडिया, गुजरात और राजस्थान से हमें मिनिएचर पेंटिंग मिल रहा है। तो दो तरीके का आएगा पेंटिंग स्टाइल, म्यूरल और वॉल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग originated around 1000 years back. Mural painting
ये रेंडर किया जाता है, rendered on the walls of caves, but not only on the walls of the caves, but also on the pillars, floors, chhat, ceilings, and other hard and permanent surface. Other hard and permanent surface. ठीक है, इसमें कैनवस जो लिया जाता है वो बहुत बड़ा होता है. लार्ज कैनवसेस आर एक्चुअली यूज्ड, क्योंकि पूरे गुफा की दीवार ही कैनवस है. लेकिन जो बनाया जाता है, इलस्ट्रेशंस आर नॉट इन डिटेल. इलस्ट्रेशंस आर नॉट इन डिटेल. ज्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, पूरी दीवार पे एक छोटा सा सब्जेक्ट मैटर मिलेगा. दूसरी तरफ आप देखिएगा, ये जो रेंडर किया गया, रेंडर्ड ऑन पेपर, ठीक है, पेपर पे या क्लॉथ्स एंड ग्लास, आगे चल के सब शीशा आ जाएगा तो ग्लास पैनल्स पे भी, ठीक है. और छोटे स्मॉल कैनवस इस्तेमाल किए गए. स्मॉल कैनवसेस आमतौर पे 25 स्क्वायर इंचेस से ज्यादा का नहीं लिया जाता, लेकिन जो भी इस पे बनाया जाएगा वो डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन या इलस्ट्रेशन लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. डिटेल्ड इलस्ट्रेशन, विवरण बहुत डिटेल में होगा, तो डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस मिलेंगे इसमें आपको. कैनवस छोटा होगा लेकिन इलस्ट्रेशन डिटेल होगा. यहां कैनवस बहुत बड़ा होगा, इलस्ट्रेशन बहुत कम होगा. ये कागज पे होगा, कपड़े पे होगा, शीशे पे होगा. ये गुफा, मंदिर, किला, मकान की छत पे, खंभों पे, दीवारों पे हो सकता है, और एनी अदर हार्ड एंड परमानेंट सरफेस. तो ये दो तरीके से आया. अब देखिए, जो भी क्लासिकल एज का इंडियन पेंटिंग है वो अजंता, मेनली तो अजंता और एलोरा को ही हम कंसीडर करते हैं क्लासिकल एज ऑफ इंडियन पेंटिंग. तो क्लासिकल एज ऑफ इंडियन पेंटिंग फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ म्यूरल पेंटिंग. ये म्यूरल पेंटिंग, क्लासिकल एज ऑफ इंडियन पेंटिंग वो म्यूरल पेंटिंग है. तो इन इंडिया the most ancient paintings and medieval as well available in the historical period is in the form of wall painting और mural painting. सबसे पुराना वॉल पेंटिंग हमें क्लासिकल एज का, प्रीहिस्टोरिक का नहीं, क्लासिकल एज का, वो मिलता है 2200 साल का, 2200 साल पहले का, 22,000 ईयर्स बैक. वो एक जगह है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जोगीमारा केव्स. तो जोगीमारा की गुफाओं से ये मिला स्पेसिमेन. सबसे पुराना ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड आर फाउंड इन द केव टेंपल्स ऑफ जोगीमारा. अब अजंता और एलोरा में से ज्यादातर का पेंटिंग वो गुप्ता पीरियड का है. तो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड अराउंड 1500 और 1600 years back, during the Gupta period, fine arts had achieved culmination, reaching at its peak or threshold, and the heritage of painting of classical period has been preserved in the form of mural painting. तो हेरिटेज जो हमारा विरासत है ना क्लासिकल पीरियड का, वो म्यूरल पेंटिंग है. वो मिनिएचर के लेवल पे कम है, म्यूरल पेंटिंग के लेवल पे ज्यादा है. और ये जोगीमारा से मिल रहे हैं म्यूरल पेंटिंग, या अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी, तनवासल, एलिफेंटा, कार्ली, भाजा, उदयगिरी, कोंडना, पीपलखोड़ा, and many other places. So from all these caves, or on the walls of all these caves, we have discovered mural painting of a classical period.
तो क्लासिकल पीरियड का हमारा जो विरासत है, जो हेरिटेज है, वो म्यूरल पेंटिंग के फॉर्म में है, न कि मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में है। और देखिए ये अजंता की गुफा की दीवार पर पेंटिंग रेंडर्ड किया गया है। ये है बोधिसत्वा पद्म पाणी बोधिसत्वा, a bodhisattva who is entitled to achieve the status of a perfect one or the बुद्धा। तो बोधिसत्वा महायाना बुद्धिज्म में बुद्धा से एक स्टेटस नीचे होते हैं, जो बुद्धा बनने के तो करीब हैं लेकिन अभी बने नहीं हैं, बट दे आर हाईली कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स, highly compassionate, and this painting is of a bodhisattva named Padmapani Avalokiteshwara Padmapani बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा, ऐसे लिख देते हैं पूरा। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अवलोकितेश्वरा ऑल्सो नोन एज पद्म पाणी। पद्म मीन्स लोटस, पाणी मीन्स हैंड। तो एक ऐसे बोधिसत्वा जिनके हाथ में, यहां पे देखिए, जिनके हाथ में लोटस, एक कमल है, लोटस। तो द गॉड हु लुक्स डाउन, जो नीचे देख रहे हैं, द गॉड हु लुक्स डाउन and bears lotus in his hand। अवलोकितेश्वरा पद्म पाणी। And there are number of other bodhisattvas within the Mahayana Buddhism, like Avalokiteshvara, Padmapani, Vajrapani, Kshittigarbha, Amitabh, Samantbhadra, क्या ना, ये लोग, इनको पेंट किया गया। दूसरी तरफ आप देखिए अजंता वॉल्स का जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो इजीली प्रिडिक्टेबल है, आपको याद करने यानी कि रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी रट्टा लगाने की जरूरत? ये आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं कि अजंता पेंटिंग्स का सब्जेक्ट, म्यूरल पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है। बस एक हिंट हो अगर आपके पास कि अजंता केव्स सब की सब बुद्धिस्ट केव्स हैं, तो अजंता केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट केव्स एंड देयर आर in all perhaps 29 caves in Ajanta Hill Cave series, and Ajanta, this place is located in Aurangabad district of Maharashtra, and there are in all 29 or sometimes you may get 30 caves। अब ये बड़ी अजीब बात है कि 29 गुफाएं हैं कि 30 गुफाएं हैं। एक्चुअली ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दो गुफाएं इंटरकनेक्टेड हैं, तो कुछ हिस्टोरियन उनको दो काउंट करते हैं, कुछ एक काउंट कर लेते हैं, या तो 29 हो जाता है या तो 30 हो जाता है, इसी वजह से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, यूपीएससी इस पे सवाल नहीं बनाने जा रही है। So there are in all 29 caves, Ajanta Hill Cave series located or situated in Aurangabad district of Maharashtra. Early murals of Ajanta belong to Satvahana period, Satvahana, Gupta and Vakataka dynasty, Vakataka period, and subject matter of Ajanta paintings includes philosophical and spiritual paintings of both the Buddha, which means Gautam Buddha, and Bodhisattvas। तो जैसे बुद्ध का बर्थ होना, बुद्धा का घर छोड़ना, महाभिनिष्क्रमण, एनलाइटनमेंट ऑफ द बुद्धा एट अ प्लेस कॉल्ड बोध गया इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, या फिर फर्स्ट टीचिंग ऑफ द बुद्धा कॉल्ड धम्मा चक्र
Pravartan and paintings of other events of Buddha's life. So we get philosophical and spiritual paintings of both the Buddha and those who are at the verge of attainment of nirvana or Buddha, but one stage lower than the Buddha. तो बुद्धा का मतलब होता है, देखिए बुद्धा का क्या मतलब होता है, बुद्धा का मतलब होता है अ परफेक्ट वन, और जो बोधि सत्वा होते हैं, बोधि सत्वा वो परफेक्ट नहीं होते हैं, अभी वन स्टेज लोअर देन द बुद्धा। मतलब एनलाइट, बुद्धा का मतलब ही होता है ना एनलाइटेंड वन और अ परफेक्ट वन। सो गौतम बुद्धा, इनफैक्ट सिद्धार्थ गौतम अटेन्ड द स्टेटस ऑफ बुद्धाहुड, और he becomes a perfect one when he came to be enlightened at Bodh Gaya under a peepal tree. तो इसीलिए सिद्धार्थ गौतम को बोलते हैं द बुद्धा, विच मीन्स नॉट अ पर्सन। गौतम बुद्धा वॉज अ पर्सन, गौतम बुद्धा वॉज अ पर्सन, विच मीन्स सिद्धार्थ गौतम वॉज एक्चुअली अ पर्सन, एंड बुद्धा मीन्स अ स्टेटस। और वो स्टेटस क्या है कि जब आप फुल्ली एनलाइटेंड हो जाते हो तो आपको बुद्धा कहा जाएगा। सो एनीवन कैन बी अ बुद्धा, लाइक गौतम बुद्धा बिकेम द बुद्धा। सो anyone who attains enlightenment could be a Buddha. तो philosophical and spiritual paintings of Buddha and Bodhisattvas. Then Jataka stories, or perhaps you know something about Jataka stories. Jataka stories are the stories of previous births of the Buddha. ये हमने अब याद करिएगा, ये आर्किटेक्चर, स्तूपा आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में भी डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की माइथोलॉजिकल स्टोरीज दी हुई हैं कि प्रीवियस बर्थ्स में बुद्धा बोथ ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में आए थे, और उन्हीं के इर्द गिर्द कहानियां बनाई गई हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज। सो विच मीन्स स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ द गौतम बुद्धा। और गौतम बुद्धा का प्रीवियस बर्थ ही हो पाएगा कहानी, क्योंकि अगला बर्थ बुद्धा का माना जाता है कि हुआ ही नहीं फिलॉसफी में, क्योंकि बुद्धा को मिला जब निर्वाणा, तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। ही गॉट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो एनीवन हु अटेन्स द स्टेटस ऑफ बुद्धाहुड इज नॉट गोइंग टू हैव एनी मोर नंबर ऑफ रीबर्थ। तो इसीलिए बुद्धा का रीबर्थ नहीं माना जाता है कि हुआ है, गौतम बुद्धा का रीबर्थ नहीं हुआ। तो जब रीबर्थ नहीं हुआ होगा, अगला जन्म नहीं होगा, तो पिछले जन्म की तो कहानियां बना पाएंगे ना, अगले जन्म की तो बना नहीं पाएंगे। तो जातका स्टोरीज आर द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। देन वी हैव नंबर ऑफ पेंटिंग्स rendered on the walls of Ajanta caves related to natural beauty and also scenes from daily life of the commoners. And then we have yaksha and yakshi traditions, nagas. ये डिवाइन क्रिएचर्स हैं, नीदर द गॉड्स एंड गॉडेसेस नॉर द ह्यूमंस, बट समवेयर इन बिटवीन दीज टू। ये हो गया। और कलर स्कीम मैंने आपको बोला पहले ही कि अजंता के पेंटर्स क्या करते थे, ये अजंता की दीवारों को पहले ऊबड़ खाबड़ दीवारों को रगड़ रगड़ के सपाट बनाते थे, और फिर उसको खुरदुरा बना के प्लास्टर चिपकाते थे। सो आफ्टर रेंडरिंग stone walls of cave surface, and again after rendering cave walls even, and again surface was made rough so that the paint base or the plaster could easily reinforce the stone wall. And the material Ajanta painters used for plaster to render painting, plaster was देखिए थिन सैंड ऑफ द रॉक। थिन सैंड ऑफ द रॉक्स मतलब चट्टान का चूरा, और मेटीरियल फॉर प्लास्टर चट्टान का चूरा, चूना पत्थर,
गाय का गोबर और गेहूं का भूसी, ये सब लेते थे। और इसके साथ बाइंडिंग मीडियम चाहिए होगा ग्लू, जो मैंने आपसे पूछा कि कहां से गोंद लाते थे जब फेविकोल का मजबूत जोड़ नहीं होता था। और एक बार जब ये प्रिपरेशन बन गया तो फिर ये प्लास्टर चिपका देंगे। अब प्लास्टर चिपक गया तो दो तरीके से पेंटिंग किया जाएगा। पेंटिंग, when painting was rendered only after complete dryness of the paint base or plaster, और जब आप पूरे ड्राई सरफेस पे पेंट करेंगे मिनरल कलर से तो एकदम चटक खिल के रंग आएगा। और अगर पेंट बेस, अगर आपको मैट फिनिश चाहिए, हल्का सा चटक नहीं चाहिए, तो हल्का सा जब पेंट बेस या प्लास्टर गीला हो तभी पेंटिंग कर दीजिए, तो चटक रंग खिल के नहीं आएगा। तो इसीलिए दो टेक्निक हो गया, फ्रेस्कोस और टेम्पेरा। टेम्पेरा टेक्निक में पेंटिंग was rendered only after complete dryness of paint base or plaster, and frescoes means when painting was rendered when the paint base or the plaster was not yet completely dried, not yet completely dried, or was wet yet, हल्का सा गीला ही हो तभी कर दिया। और दूसरी तरफ गम was applied, गोंद अप्लाई किया गया, गोंद अप्लाई किया गया एज अ बाइंडिंग मीडियम। एंड अजंता पेंटिंग टेक्निक इज रिफर्ड टू एज टेम्पेरा, बट वी ऑल्सो गेट स्पेसिमेन ऑफ फ्रेस्को पेंटिंग्स। तो अजंता में हमें दोनों मिलता है, टेम्पेरा भी और फ्रेस्कोस भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर पेंटिंग्स टेम्पेरा, ज्यादातर स्पेसिमेन टेम्पेरा की है। मतलब पेंट बेस या प्लास्टर के पूरा सूख जाने पे ही ज्यादातर पेंटिंग करते थे, मतलब चटक रंग पसंद करते थे अजंता के पेंटर्स, डल नहीं पसंद करते थे। और इसके अलावा देखिए अजंता पेंटिंग में बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जो बहुत फेमस हैं। और मैंने आपको बोला 29 या 30 गुफाएं जिनकी दीवारों पर ऐसे पेंटिंग्स हैं। जैसे गुफा 1, गुफा संख्या 1, केव टेम्पल नंबर 1 में बोधिसत्वा, पद्मपाणि, वज्रपाणि और एक राजकुमारी जिनको डार्क कॉम्प्लेक्शन में दिखाया गया है, स्किन कलर डार्क दिखाया गया है, तो ब्लैक प्रिंसेस बोला जाता है। तो बोधिसत्वा, पद्मपाणि, वज्रपाणि एंड ब्लैक प्रिंसेस। केव टेम्पल नंबर 2 में बर्थ ऑफ सिद्धार्थ गौतम एंड 7 स्टेप्स कॉल्ड सतोपन्नो या 7 स्टेप्स बताए गए हैं। तो इसमें बताया, बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में बताया जाता है कि बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम, जब महामाया ने उनको जन्म दिया, सिद्धार्थ गौतम की मां महामाया और फादर सुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्यास के राजा रानी थे लोग। तो जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, सो इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ सिद्धार्थ गौतम स्टूड अप एंड वॉक्ड 7 स्टेप्स एंड सेड, दिस इज माई लास्ट बर्थ, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी मोर। जाहिर सी बात है कि ह्यूमन बेबीज में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि जन्म के तुरंत बाद खड़े हो जाए, चलने लगे और बोलने लगे। मतलब ये बात माइथोलॉजिकल है, कहानी है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, वो खड़े हुए, 7 कदम चले और उन्होंने कहा कि यह मेरा अंतिम जन्म है और इसके बाद मेरा अब कोई और जन्म नहीं होगा, क्योंकि मैं इस जन्म में निर्वाण ले लूंगा और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से फ्री हो जाऊंगा। तो इसी को सतोपन्नो या 7 स्टेप्स बोलते हैं। ये पूरी बात पेंटिंग में बनाई गई है। तो इसमें ये माइथोलॉजिकल है दैट इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ सिद्धार्थ गौतम स्टूड अप, walked 1 2 3 4 5 6 7 steps and said, this is my last birth, I'm not going to have any more number of rebirth, any more number of birth, because I'm going to get the status of nirvana. Then we have other specimens like cave temple number 9 से हमें मिलता है नागराज का portrait, स्तूपा, worship and other such paintings. Cave temple number 16 एक मरणासन राजकुमारी है, dying princess, and then portrait of the king of Magad, Ajatashatru, and several other pictures of Buddha's life. So these are famous paintings from the walls of Ajanta caves. And also this style of painting, mural painting, descend down towards South India. तो ये wall painting या mural painting South India में गया और
मंदिर की दीवारों पर गर्भगृह के इनर वॉल्स पे पेंटिंग किया गया, वो भी म्यूरल पेंटिंग में ही आता है. सो द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग एक्सटेंड्स फर्दर डाउन टुवर्ड्स साउथ इंडिया इन तमिलनाडु in the preceding years, preceding centuries after the Annalora, with regional variation during the regime of Pallava rulers, then Pallavas, Pandyas, and Cholas. And one of the most famous Pallava ruler was Mahendra Varman I, who ruled larger parts of Tamil Nadu from 604 up till 644 Common Era. And Mahendra Varman I got constructed number of cave temples called Mandapa. And mural paintings or wall paintings were also rendered on the walls of cave paintings called Mandapa at his initiative. So Mahendra Varman I, who ruled in the 7th century, was responsible for building number of temples at Pannamalai and Mandagapattu and other such places. And paintings were also rendered on the walls of caves, Mandapa टेम्पल्स. जैसे ये देखिए लॉर्ड शिवा डिफरेंट फॉर्म्स में अपने दिखाए गए हैं. तो ये वॉल पेंटिंग है और ये मंडगापट्टू और पन्नामलाई जो वहां पे जो गुफा मंदिर बने या महेंद्र वर्मन फर्स्ट के इनिशिएटिव पे बनवाए गए, वहां पर ये म्यूरल पेंटिंग भी रेंडर कराया गया है. और मंडगापट्टू का जो गुफा मंदिर है उसमें महेंद्र वर्मन, जो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन है, वो अपने आप को लेख में इंस्क्रिप्शन में बताता है कि मैं विचित्र चित्त क्यूरियस माइंडेड हूं, मैं चैत्याकारी हूं, यानी कि मैंने टेम्पल्स बनवाए हैं, और मैं टाइगर अमंग द पेंटर्स, मैं पेंटर्स में टाइगर हूं, मतलब मैं प्रोमिनेंट पेंटर हूं. तो वो शायद खुद ही अच्छा पेंटर रहा होगा, तभी अपने बारे में ऐसा बता रहा है, चैत्याकारी. सो इंस्क्रिप्शन एट मंडगापट्टू टेम्पल मेंशंस महेंद्र वर्मन पल्लवा रूलर विथ न्यूमरस नेम्स सच एज विचित्र चित्त, क्यूरियस माइंडेड, चित्रकार पुली मतलब टाइगर होता है तमिल में, और चैत्य मतलब यहाँ पे मंदिर से है, कारी मतलब हाथ से है, जो हाथ से मंदिर बनवाए, चैत्याकारी टेम्पल बिल्डर, विच शोज हिज इंटरेस्ट इन art activities, and the paintings in these temples too were done at his initiative, depicting Lord Shiva in different forms. So the and Pandya rulers they too patronized mural painting at Tirumalai caves and Jaina caves at सित्तन वसल. तो ये जो म्यूरल पेंटिंग मंदिरों की दीवारों पर किया गया, खास तौर पे गर्भगृह की दीवारों पर, इनर वॉल्स ऑफ गर्भगृह, इसको आगे बढ़ाया चोला रूलर्स ने. एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ग्रेट चोला रूलर्स हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर ऑफ टेम्पल्स. तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए और चोला रूलर्स ने, जैसे बृहदेश्वरा और राजेश्वरा टेम्पल, या फिर आप देखिए दूसरे टेम्पल्स भी बनवाए उन्होंने, जैसे गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द सन ऑफ राजराजा फर्स्ट, चोला रूलर सन ऑफ राजराजा फर्स्ट नेम्ड राजेंद्र फर्स्ट. ठीक है. तो लॉर्ड शिवा को इन्होंने ज्यादातर पेंट किया, और लॉर्ड शिवा को दिखाया इन्होंने कि लॉर्ड शिवा इज इन कैलाशा माउंटेन, कैलाशा पर्वत, लॉर्ड शिवा इन त्रिपुरांतका, लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉइंग फोर्ट्स ऑफ डीमंस, राक्षसों के किलों का संहार करते हुए लॉर्ड शिवा को दिखाया गया. लॉर्ड शिवा को त्रिपुरांतक में दिखाया गया. लॉर्ड शिवा को नटराज, उनका डांसिंग फॉर्म है, नटराज रूप में दिखाया गया. इस तरह के बहुत सारे पेंटिंग्स भगवान शिव से रिलेटेड किए गए हैं. वो बृहदेश्वरा टेम्पल या फिर जो गंगई कोंडा चोलापुरम या और टेम्पल्स जो चोला रूलर्स ने बनवाया था, ये म्यूरल पेंटिंग्स हैं. देखिए इसके बाद आज से 1000 साल पहले म्यूरल पेंटिंग का ट्रेडिशन थोड़ा कमजोर पड़ेगा और एक नया स्टाइल डेवलप करेगा, मिनिएचर पेंटिंग. तो मिनिएचर वर्ड जो है ना, ये डिराइव किया गया है मिनियम से. सो मिनिएचर
का मतलब साइज नहीं है, मिनिएचर यहाँ पे मिनियम से ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब होता है लाल सिंदूर वाला रंग, रेड, टिपिकल जो बोलते हैं रेड लेड, टिपिकल रेड इंडियन कलर, रेड लेड, मिनियम। तो मिनिएचर, मिनिएचर वर्ड इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम मिनिमम, इट इज डिराइव्ड आउट ऑफ मिनियम विच मीन्स रेड लेड. And this kind of painting was rendered on the cloths or paper or glass panel and originating around 11th up to 12th centuries. और इसका अर्ली स्पेसिमेन बिहार और बंगाल के पाला रूलर्स से मिलता है. So the earliest examples of miniature painting India exist in the form of illustrations, illustrations to the religious text on Buddhism. तो ये जो पाला रूलर्स थे ना, ये पाला रूलर्स एक्चुअली बुद्धिस्ट थे, लेकिन ये तांत्रिक बुद्धिस्ट थे. यानी कि देखिए बुद्धिज्म के में मेनली दो ब्रांच हैं, हीनयाना ओरिजिनल वाला और महायाना थोड़ा डेविएटेड वर्जन. तो महायाना 2000 साल पुराना है, 2000 साल पहले ओरिजिनेट करता है, और 5th सेंचुरी में यानी कि हमारे से 1500 साल पहले एक और बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म ग्रो करता है. और तांत्रिक बुद्धिज्म वाले ही पाला रूलर्स तांत्रिक बुद्धिज्म वाले थे, उसको बोलते हैं वज्रयाना, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, वज्रयाना. तो 2000 साल पहले के पहले ओरिजिनल बुद्धिज्म था हीनयाना, फिर 2000 साल पहले महायाना आया डेविएटेड वर्जन, और 1500 साल पहले वज्रयाना आया तांत्रिक कल्ट वाला बुद्धिज्म, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना भूत पिशाच मुंडी खोपड़ी नींबू मिर्ची ये सब आता है. ठीक है, तो पाला रूलर्स दे बिलोंग टू वज्रयाना. वज्रयाना बुद्धिज्म. और इसीलिए देखिए चूंकि बुद्धिज्म है तो ज्यादातर इनका जो पेंटिंग होगा वो उसका थीम तो हर हालत में बुद्धिस्ट ही होगा ना. तो बुद्धिस्ट थीम्स और ये 11th से 12th सेंचुरीज के आसपास ओरिजिनेट कर रहा है, हमारे से 1000 साल पहले. और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थे या महाविहारास थे, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, इस तरह के महाविहार या विश्वविद्यालय उस जमाने के. उन्हीं विश्वविद्यालयों में ये पेंटिंग्स रेंडर करके प्रिजर्व किया गया था, रखा गया था. लेकिन हम ये भी जानते हैं ना कि अजंता और नालंदा और विक्रमशिला जैसे उस जमाने के महाविहारास या बड़े बड़े मठ और जो विश्वविद्यालय की तरह थे उस जमाने में, उनको टर्किश इन्वेजन में वो बख्तियार खिलजी जिसका नाम था ना, वो मोहम्मद गौरी का कमांडर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसने जला के सब राख कर दिया, तहस नहस कर दिया. तो बहुत सारी पेंटिंग्स भी जल गई, मिनिएचर पेंटिंग्स भी जल गई. तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज कॉल्ड महाविहारास ऑफ नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमरूपा वर ग्रेट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट ऑफ द पालास. Illustrated manuscripts mostly belong to the Vajrayana school of Buddhism. Vajrayana school of Buddhism. तो इनमें से कुछ ताड़ के पत्तों पर, पाम लीव्स, और कुछ कपड़े बाद में चल के कपड़ों पर रेंडर किया गया. शुरुआत में ये ताड़ के पत्तों पर रेंडर किए गए थे. ये देखिए स्पेसिमेन अर्ली पेंटिंग्स का. तो पाला रूलर्स के अलावा गुजरात और राजस्थान में भी ये ओरिजिनेट करता है, और वेस्टर्न इंडियन स्कूल 12 to 16th century, 12 to 16th centuries, the western Indian style in Gujarat, Rajasthan and Malwa. Gujarat, Rajasthan and western Madhya Pradesh called Malwa. The motivating force was Jainism, क्योंकि उधर के रूलर्स वो जैनिज्म को पैट्रोनाइज करते थे, और बिहार और बंगाल के पाला रूलर्स वज्रयाना बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करते थे. तो पाला रूलर्स के पेंटर्स का सब्जेक्ट मैटर बुद्धिस्ट होगा, और इधर वेस्टर्न इंडिया इधर जैना कल्ट डोमिनेट किया, तो इधर जैनिज्म होगा.
तो पैट्रोनाइज बाय द किंग्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात एंड राजस्थान एंड मालवा फ्रॉम 961 अप टिल 1300 कॉमन एरा और एनो डोमिनी एंड इट एग्जैजरेट्स सर्टेन फिजिकल ट्रेट्स। तो इसमें खास बात यह है कि ये शरीर के अंगों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बड़ा करके दिखाया जाएगा। जैसे ये बड़ी बड़ी आंखें, यहां से यहां तक आंख चली जा रही है, तो वो क्या बोलते हैं उसको गाने में, कवियों की कल्पना में, कजरारे नैन। तो कैसे बनाएं, कुछ इस तरह की आंखें बनाई जाएंगी, बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है, इतनी बड़ी आंखें कि लगेगा कि ये यहां से यहां तक पूरी आंख ही है। तो एग्जैजरेशन ऑफ सर्टेन फिजिकल ट्रेट्स आ जाता है, ठीक है ना, ये खास बात है। तो मिनिएचर में शुरुआत में दो है, मिनिएचर में शुरुआत में दो आया, एक आया मिनिएचर में पाला स्टाइल और दूसरा आया वेस्टर्न इंडिया स्टाइल। पाला स्टाइल में बुद्धिस्ट, वज्रयाना बुद्धिस्ट है, और वेस्टर्न इंडिया स्टाइल में जैनिज्म मोटिवेटिंग फोर्स है, क्योंकि चालुक्य डायनेस्टी के ज्यादातर रूलर्स जैन हुआ करते थे। और ये एग्जैजरेशन ऑफ सर्टेन फिजिकल ट्रेट्स सच एज आइस पे या इस तरह की चीजों पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। फिर मिनिएचर पेंटिंग में जो बड़ा चेंज आता है ना, वो लाते हैं मुगल्स, और मुगल्स मिनिएचर पेंटिंग को अपने एकदम पीक पर लेकर चले जाएंगे। कैसे, वो देखते हैं। ये सब स्पेसिमेंस हैं, एक नजर लगा लीजिए और देखिएगा। जैसे यहां पे हम ले तो ये शॉर्ट कैनवस है, कपड़े पे है, और डिटेल्ड इलस्ट्रेशन है। इतने छोटे से पेंटिंग में क्या क्या दिखा, देखिए, एम्पेरर है, सूफी सेंट है, ओल्ड एजेड है, ये यंग सूफी सेंट है, ये पोर्चुगल है अपने पहनावे से, और ये राजपूत कमांडर हैं, कोई राजपूत राजा हैं जिन्होंने अपने हाथ में पेंटिंग पकड़ रखा है, पेंटिंग में पेंटिंग पकड़ रखा है। ये एम्पेरर बैठा हुआ है, जितना इसको ज्ञान नहीं होगा उससे ज्यादा भौकाल मार दिया गया, ये बड़ा सा हैलो बनाया गया, इतना बड़का हैलो, जैसे लग रहा है इससे ज्यादा ज्ञानी आदमी पूरी दुनिया में कोई होगा ही नहीं। कौन होगा ये जरा बताइएगा तो कमेंट करके, देखता हूं पहचान पा रहे हैं कि नहीं। और ये जो उड़ते उड़ते ये दिख रहे हैं ना, ये सब यूरोपीय स्टाइल वाले यक्षा यक्षी, जैसे हमारे यहाँ यक्षा यक्षी होते हैं ना, ये यूरोप में ऐसे बनाए गए हैं, तो ये दिखाए गए हैं। और ये जो एम्पेरर है, ये जिस पे बैठा हुआ है, वो एक्चुअली बालू घड़ी है, सैंड वॉच है, तो सैंड वॉच बनाया गया है, उसी पे बैठा है। और ये अपना टेक्स्ट बुक वगैरह ले दे रहे हैं। और यहाँ देखिए बढ़िया पर्शियन कालीन बिछी हुई है, एकदम गद्देदार, ये मोटी पर्शियन कालीन की, पैर रख दीजिए तो लगेगा कि एकदम धंस रहा है पैर। और ये दोनों है यहाँ, बाकी आप देख ही रहे हैं, पैग वैग मार रहे हैं सब बाकी। और यहाँ पे दरबार लगा हुआ है, दरबारी लोग, मंत्री लोग बैठे हैं। ये ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल पुल से झरना चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, जान ही रहे हैं आप, तो वो ग्रेविटी से झरना चलता था मुगलों के टाइम पे। ये स्टूपिड आदमी जो भी होगा, ये हाथी पे बैठ के कौन फूल सूंघता है यार, लेकिन ये हाथी पे बैठ के फूल सूंघेगा, दरबार में फूल सूंघेगा, ये फूलसूंघी रूलर है। कौन है बता पाएंगे? जो भी हो बताइएगा। और ये कोट, ये तो, और बाकी ये तो है जो भी ये फूलसूंघी आदमी, और बाकी उसकी बेगमात वगैरह जो भी होंगी, ठीक है ना, हमसे क्या ही लेना देना, हमें पेंटिंग पढ़ना है। तो पेंटिंग में देखिए, मुगल मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत बाबर और हुमायूं नहीं कर पाते हैं। बाबर ने कोशिश किया था कि मुगल डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग लगा दे, तो बाबर ने कोशिश किया मुगल डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग लगाने का, लगा नहीं पाया, मर गया 5 ही साल में, 1526 से 1530। और हुमायूं तो जिंदगी भर लुढ़कता रहा, उसके पीछे तो अफगानी पड़ गए थे, शेरशाह सूरी, और लुढ़कते लुढ़कते एक दिन मर गया। तो बाबर चाहता था कि मुगल डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग लगा दे, और उसने एक बहुत बड़े फारस की तरफ के एक बहुत बड़े पेंटर बिहजात को इनवाइट किया था कि आगरा मेरे दरबार में आ जाओ, मेरे कोर्ट में आ जाओ। बिहजात बहुत बड़ा पेंटर था अपना जमाने का, उसने बाबर को साफ मना कर दिया, नहीं आ रहा है, जाओ, तुम्हारे दरबार में, छोटा सा तो दरबार है तुम्हारा। तो
फिर इधर बाबर मर जाता है तो हुमायूं उसको रिप्लेस करता है, और हुमायूं को रिप्लेस कर दिया यहाँ से इंडिया से शेरशाह सूरी ने, लखेत दिया, भगा दिया उसको हुमायूं को। तो हुमायूं पर्शिया चला गया और 15 साल बाद लौट के आया, फिर से जीत गया, एम्पायर वापस पा गया। तो व्हेन हुमायूं वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम पर्शिया, ही वाज accompanied by two Persian painters, अब्दुस समद खान एंड मीर सैयद अली। तो वो दो पेंटर्स को लेके आया था, अब्दुस समद खान और मीर सैयद अली को, फारस से। एंड बोथ ऑफ देम दे वर डिसाइपल्स ऑफ बिजात। तो बिजात तो नहीं आया, लेकिन हुमायूं बिजात के दो शिष्य पेंटर्स को लेकर के चलाया, अब्दुस समद खान और मीर सैयद अली। लेकिन हुमायूं अभी पेंटिंग डिपार्टमेंट लगाता, मर गया। दिल्ली में सीढ़ी से लुढ़क करके, शेर मंडल लाइब्रेरी था, शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लुढ़का हुमायूं और लुढ़कते लुढ़कते मर गया। तो हुमायूं को रिप्लेस किया अकबर ने। तो आगे जब अकबर एम्पायर बना 13.5 साल का था, तो थोड़ा बड़ा हो गया 17-18 साल का, तो अकबर के दिमाग में आया कि मुगल डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग लगाते हैं। तो उसी ने बुलाया अब्दुस समद खान और मीर सैयद अली, क्योंकि सुनिए आप लोग तो बड़े बड़े महान पेंटर्स हो, आपको मेरे अब्बा लेकर आए थे हुमायूं, सुना फारस से, तो आप लोग ना मुगल डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग लगाओ। तो अकबर के टाइम पे फिर फाइनली मुगल डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग लगता है, बनता है। तो the Mughal school from 1560 till 1800. So with the establishment of the Mughal Empire, the Mughal school of painting originated during the time of Akbar in 1560. And Emperor Akbar was keenly interested in the art of painting and architecture. तो पेंटिंग अकबर के जमाने में शुरुआत किया मीर सैयद अली, ये पर्शिया के पेंटर्स थे, एंड अब्दुस समद खान। तो एक चीज तो साफ समझ में आ रही है, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग व्हेन द मुगल डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय टू पर्शियन पेंटर्स, सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग द मुगल पेंटिंग स्टाइल केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि पेंटर्स ही, फाउंडर्स ही फारस के हैं, तो पर्शिया का तो स्टाइल झलकेगा ही झलकेगा ना मुगल पेंटिंग में भाई। और आगरा जो अकबर का दरबार था, उसमें पोर्चुगल लोग आ चुके थे, तब तक वो दरबार में रहते थे, पुर्तगाली, पोर्चुगल। तो पोर्चुगल आल्सो इंट्रोड्यूस द यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल एट द कोर्ट, एंड पर्शियन पेंटिंग स्टाइल वाज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड एट द कोर्ट। तो अकबर के टाइम पे जो मुगल पेंटिंग है, उसमें दो इन्फ्लुएंस विजिबल होगा, पर्शियन इन्फ्लुएंस एज वेल एज यूरोपियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुगल पेंटर्स ने रामायण और महाभारत का भी पेंटिंग किया, श्रीमद् भागवत गीता का पेंट बुक तैयार किया। देखिए जैसे ये है ना, ये मुगल पेंटिंग है, और ये चतुर्भुज भगवान विष्णु शेष नाग के सैया पे विराजमान दिखाए गए हैं। ये चतुर्भुज भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र पकड़े, शंख पकड़े, गदा और कमल पकड़े हुए दिखाए गए हैं। इधर राक्षस वगैरह दिखाए गए हैं, राक्षसों का संहार करते हुए दिखाया गया है। तो ये मुगल पेंटिंग है, और उन्होंने हिंदू माइथोलॉजिकल थीम्स और हिस्टोरिकल थीम्स लिया और पेंटिंग रेंडर्ड किया। तो और ये आदमी जहांगीर है, ये जो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है ना इसके चारों तरफ, जहांगीर। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस के अलावा यूरोपियंस भी तो, पोर्चुगल भी तो है ना, तो यूरोपियन पेंटिंग भी आ जाएगा। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस है मुगल मिनिएचर पेंटिंग पे, और यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। और यूरोपियन इन्फ्लुएंस यानी कि वेस्टर्न टेक्निक। तो वेस्टर्न टेक्निक में मुगलों ने क्या सीखा? छाया चित्रण, शेडिंग एंड पर्सपेक्टिव। शेडिंग 3D इंपैक्ट देता है, और पर्सपेक्टिव मतलब सेंस ऑफ डिस्टेंस होता है। जैसे अगर चिड़िया उड़ रही है, दूर है, तो ऐसे बनेगी, या बहुते दूर है तो ऐसे बनेगी, या उससे भी ज्यादा दूर है तो चिड़िया छोटी होती जाएगी। तो इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ डिस्टेंस, दूरी का सेंस लगाना। तो शेडिंग and perspective, these two techniques were actually introduced by the Europeans at the Mughal court, and the most remarkable painting of Akbar's period and Jahangir's period was Razmnama, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारता, और महाभारत का पेंट बुक है रज़मनामा। इस तरह से पेंटिंग किया गया।
तो रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता का पेंटिंग के अगर सब्जेक्ट मैटर लिया गया तो लिस्ट ऑफ अकबर्स कोर्ट पेंटर्स। अब देखिए अकबर के दरबार में जो बड़े बड़े पेंटर्स हैं, दो तो फारस के ही हैं मेन पेंटर्स, अब्दुल समद खान और मीर सैयद अली। उनके अलावा अकबर एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ लोकल पेंटर्स, वेरी गुड एक्सेलेंट लोकल पेंटर्स लाइक दसवंत, बसावन, मिस्किन, नन्हा, कान्हा, बसावन, मनोहर, दौलत, मंसूर, केशु, भीम गुजराती, धर्मदास वगैरह वगैरह, ढेर सारे पेंटर्स हैं। खास बात ये नहीं है, इसका नाम नहीं याद रखना है, ये आपको याद रखना है द मुगल पेंटर्स केम फ्रॉम डाइवर्स सोशल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड एंड मेरिट वॉज गिवन प्रेफरेंस इंस्टेड ऑफ रिलीजन और कास्ट और क्रीड या जेंडर। इस सब चीज को प्रेफरेंस नहीं दिया अकबर ने, जहांगीर ने। उन्होंने देखा कि जो अच्छा पेंटर है उसको उठा लो, मतलब एम्प्लॉयमेंट दे दो, ठीक है ना। तो अकबर के ही ज्यादातर पेंटर्स जहांगीर के टाइम पे थे। भाई अकबर मरा, जहांगीर, अब पेंटर, अकबर मरा ना, पेंटर थोड़ी मर जाएंगे। तो अकबर वाले ही पेंटर ज्यादातर जहांगीर के दरबार में रहेंगे, या जहांगीर वाले ज्यादातर पेंटर शाहजहां के दरबार में रहेंगे जब जहांगीर मर जाएगा तो, ठीक है ना। तो जहांगीर के टाइम पे ना पेंटिंग एकदम, मुगल पेंटिंग एकदम गोल्डन, अपने चरम सीमा पे पहुंच गई, गोल्डन पीरियड में था, थ्रेशोल्ड में था। देखिए लिखा हुआ है अंडर जहांगीर पेंटिंग एक्वायर्ड ग्रेटर चार्म, रिफाइनमेंट एंड डिग्निटी। मतलब रिफाइंड, जहांगीर के टाइम पे मुगल पेंटिंग, जहांगीर का काल ना, जहांगीर का पीरियड मुगल पेंटिंग का वो गोल्डन पीरियड है, golden period of the Mughal painting. And there is one interesting thing actually related to Jahangir. Jahangir himself was a very good painter and was an expert in identifying पेंटिंग्स ऑफ हिज डिफरेंट पेंटर्स। अगर एक पेंटिंग में 5 पेंटर्स ने पेंट किया है तो जहांगीर बता देगा कि कौन कौन सा पार्ट कौन कौन से पेंटर्स ने पेंट किया है। तो जहांगीर वाज एन एक्सपर्ट of identifying paintings of his different painters because he himself was a very good painter. So and he was interested more in painting rather than constructing monuments. तो जहांगीर के टाइम पे कहानियों की एक किताब पेंट की गई, कहानियां उसमें, उसको पेंट किया जाता था, कहानी को ही, जैसे कॉमिक बुक होती ना वैसे। आईआर ए दानिश करके, आईआर ए दानिश एनिमल फेबल बुक को पेंट किया गया। दरबार के दृश्य, दरबार सीन्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग, बर्ड, animal and flower studies were also painted or executed during the time of Jahangir. And famous painters of Jahangir's court were Aka Riza, Abul Hassan, Mansoor, Bishan Das, Manohar, Govardhan, Balchand, Daulat, Mukhlis, Bhim and Inayat. They were the court painters present at the court of Jahangir and produce masterpieces of the Mughal miniature painting. तो birds, animals, flower studies, दरबार सीन्स को पेंट किया गया। देखिए जैसे ये पैरेट, टर्की कॉक, गीज, बंगाल फ्लोरिकन और डोडो पक्षी, मॉरिशस का बर्ड जो अब एक्सटिंक्ट। देखिए बेचारा रो रहा है, बोला यार तुम लोग मेरे को मार मार के खा गए, एक्सटिंक्ट कर दिया मेरे को, अब तो मैं हूं ही नहीं धरती पे। तो मुगलों के टाइम पे ये था मॉरिशस का पक्षी डोडो, अब ये गो हो गया, इसको एक्सटिंक्ट कर दिया लोगों ने, मार के खत्म कर दिया। तो मनुष्य बड़ा ही क्रूअल होता है, क्या खा जाता है सब कुछ, है ना। पंछियों को भी मार के लोग खा जाते हैं, बताइए। तो जहांगीर देखिए कुछ बड़ा भौकाल दिखाया गया जहांगीर को, एकदम देवता और भगवान के जैसे इसके पेंटर्स ने। तो द पोर्ट्रेट ऑफ जहांगीर illustrated a typical example of miniature executed during his period of Jahangir. It shows Jahangir including a picture of the Virgin Mary in his right hand. तो एक पेंटिंग में जहांगीर मदर मैरी का पोर्ट्रेट पकड़े हुए दिखाया गया है। तो कुछ क्रिश्चियन थीम्स भी लिए गए, ज्यादातर हिंदू थीम्स और कुछ इस्लामिक थीम्स लिए गए।
और गोल्डन कलर का इस्तेमाल जहांगीर ने, स्वर्ण कलर रंग, गोल्डन कलर का इस्तेमाल जहांगीर ने बॉर्डर पे खूब किया है। तो देखिए जैसे ही ना गोल्डन कलर बॉर्डर पे गोल्डन कलर खूब इस्तेमाल हुआ है। फिर शाहजहां आएगा, शाहजहां, और शाहजहां का इंटरेस्ट ज्यादा पेंटिंग में नहीं होगा। शाहजहां का इंटरेस्ट दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, शाहजहानाबाद, ये सब बनवाने में होगा। लेकिन शाहजहां किसी तरह से somehow or other, शाहजहां tried his best to maintain the quality and refinement of the मुगल मिनिएचर पेंटिंग। तो इसने मुगल मिनिएचर पेंटिंग को शाहजहां ने ऊपर तो नहीं उठाया, लेकिन गिरने भी नहीं दिया, इतना तो काम कर ही दिया था इसने। ठीक है, तो अंडर शाहजहां द मुगल पेंटिंग मेंटेन्ड इट्स फाइन क्वालिटी, somehow or other मेंटेन इट्स फाइन क्वालिटी। लेकिन शाहजहां ने ज्यादातर पेंटिंग अपना खुद का बोला, मेरा पोर्ट्रेट बनाओ, मेरा पोर्ट्रेट बनाओ, पोज मार रहा है, कभी गुलाब ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है, कभी कुछ। ठीक है, पोर्ट्रेट वॉज गिवन कंसिडरेबल अटेंशन बाय हिज पेंटर्स। द वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ हिज पीरियड आर बिचित्तर, चिंतारमण, अनूप चतर, मोहम्मद नादिर समरकंदी, इनायत एंड मकरध्वज, ये लोग पेंटर्स थे। फिर इसको रिप्लेस कर देगा, गिरफ्तार करके आगरा के किले में डाल देगा इसका बेटा औरंगजेब। और औरंगजेब आप जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो पेंटिंग डिपार्टमेंट ही उठा के बंद कर देगा, कहानी खत्म कर देगा, बोले गैर इस्लामिक है, गैर इस्लामिक, पेंटिंग बंद। तो पूरा पेंटिंग डिपार्टमेंट ही शट डाउन कर दिया गया, सारे पेंटर्स बेचारे बर्बाद हो गए, और वो आसपास के राजपूताना वाले डायनेस्टीज में चले जाते हैं। करते ही क्या वो। तो अब इसी तरह से आप देखिए, सेंट्रल इंडिया और राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल आएगा। तो ये लोकल लेवल पे चलेंगे, इसमें कहीं कहीं पे मुगल इन्फ्लुएंस विजिबल होगा, कहीं कहीं पे मुगल इन्फ्लुएंस विजिबल नहीं होगा। तो अनलाइक मुगल पेंटिंग विच इज प्राइमरली सेकुलर, तो मुगल पेंटिंग सेकुलर था, लेकिन सेंट्रल इंडिया का पेंटिंग, राजस्थानी और पहाड़ी रीजन्स की पेंटिंग वो सेकुलर नहीं होंगे, वो इंडियन हिंदू ट्रेडिशन का डीपली रूटेड होगा। वही सब ज्यादातर सब्जेक्ट मैटर लिया जाएगा फ्रॉम इंडियन इपिक्स like Ramayana and Mahabharata, from Hindu Puranic textbook, love poem like Geet Govind of Jaydev related to Bhagwan Sri Krishna, Indian folklore, कहानियां and work on musical themes, रागमाला। तो ये सब, तो मुगल मिनिएचर पेंटिंग सेकुलर रहा है, लेकिन राजस्थानी, पहाड़ी और ये सब सेंट्रल इंडिया के पेंटिंग्स सेकुलर नहीं होंगी, रिलीजियस होंगी, भक्ति में लबरेज होंगी, भक्ति से भरी होंगी। तो रामायण, महाभारत, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गीत गोविंद ऑफ जयदेव, यहां से सब्जेक्ट मैटर लिया जाएगा और पेंट किया जाएगा। और जैसे इसमें आपको पढ़ना होता है, देखिए मेवाड़ रागमाला पेंटिंग, इसको स्टडी करिएगा, ये नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, हालांकि काफ़ी डिटेल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हर एक पे पूरा डिटेल स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा और जो PDF जाएगा आपके पास उससे भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। मेवाड़ पेंटिंग में फिर इसमें आ जाएगा बूंदी, कोटा बूंदी, बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मेवाड़ और बूंदी स्टाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बूंदी स्टाइल ज़्यादा सुपीरियर है और मेवाड़ स्टाइल थोड़ा उससे इंफीरियर है। लेकिन मेवाड़ स्टाइल आम लोगों में ज़्यादा पॉपुलर होगा और बूंदी स्टाइल इलीट सर्कल में ज़्यादा पॉपुलर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह की पेंटिंग्स देखिए। ज़्यादातर पेंटिंग्स भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव, विष्णु जी, इन्हीं लोगों की पेंटिंग्स, रिलीजियस थीम्स है ना, रिलीजियस थीम्स, और हिंदू सिंबल्स लिए जाएंगे, जैसे स्वास्तिका, लोटस, बेल, जैसे हिंदू प्रतीक चिन्ह और सिंबल्स लिए गए हैं। तो बूंदी, किशनगढ़ स्टाइल का एक बहुत फेमस पेंटिंग है, इंडियन मोनालिसा हम लोग बोलते हैं इन्हें, ये बनी ठनी इंडियन मोनालिसा। अगर आप उधर के हैं
राजस्थान की तरफ के हैं, जयपुर, मेवाड़, मारवाड़ उधर की तरफ के हैं, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल हमें और बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर कभी भी आप देखिए राजस्थान घूमने जाएंगे, कहीं रुकेंगे, किसी होटल मोटल में रुकेंगे, तो बनी ठनी आपको जरूर दिखेंगी, वो पेंटिंग का किसी ना किसी प्रिंटेड फॉर्म में, रूप में आपको दीवारों पर टकी हुई मिलेंगी। तो बनी ठनी कौन है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है हिंदू रिलीजन में या माइथोलॉजी में, वो जरूर बताइएगा। किशनगढ़ में, और किशनगढ़ में ही है बनी ठनी। निहाल चंद मास्टर पेंटर थे किशनगढ़ के, जिन्होंने ये मास्टरपीस बनी ठनी पेंटिंग रेंडर किया था। ठीक है, और खास बात यह है देखिए कि अगर आप देखेंगे मुगल और राजपूताना पेंटिंग का कंपैरिजन, तो हम कुछ पैरामीटर्स अगर ले लें या सब्जेक्ट मैटर ले लें तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे राजपूताना पेंटिंग में शुरुआत में तो म्यूरल पेंटिंग था, लेकिन बाद में मिनिएचर आ गया। तो राजपूत पेंटिंग, इनिशियली Rajput painters painted mural wall paintings, but later on miniature paintings were actually rendered. But the Mughals right from very beginning rendered only miniature painting, and they avoided rendering wall painting or miniature painting. हाँ ठीक है, they avoided rendering mural painting or wall painting. तो Mughals मेनली 100% वो मिनिएचर पेंटिंग ही रेंडर करते थे। वो वॉल पेंटिंग या इसको बोलते हैं ना मिनिएचर, एक्चुअली कंफ्यूज हो जा रहा हूं मैं, ठीक है, वॉल पेंटिंग या म्यूरल पेंटिंग नहीं रेंडर किए मुगल्स। और अगर आप थीम देखेंगे तो राजपूताना, पहाड़ी और सेंट्रल इंडिया का थीम मेनली रिलीजियस या डिवोशनल थीम है, बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबें। जबकि मुगल पेंटिंग का जो नेचर है वो सेकुलर पेंटिंग है, बेस्ड ऑन जैसे रॉयल दरबार सीन्स, रॉयल कोर्ट, वॉर एंड हंटिंग सीन्स, एनिमल, बर्ड एंड फ्लावर पेंटिंग। अगर आप खास बात देखें, पिक्यूलियरिटीज को देखेंगे कंपैरिजन में, तो पिक्यूलियरिटी देखेंगे तो राजपूत, सेंट्रल इंडिया और पहाड़ी में मेनली रिलीजियस सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं फ्रॉम हिंदू रिलीजन, जबकि मुगल्स ने जो सिंबल्स लिए हैं वो प्राइमरली सेकुलर सिंबल्स हैं। टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो राजपूताना का 17th and 18th सेंचुरी है, और मुगलों का टाइम पीरियड, मुगल पेंटिंग का टाइम पीरियड 16th and 17th सेंचुरी है। सो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन, दिस कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन एग्जामिनेशन, but factual information and other such things are important mainly for or primarily for your preliminary examination. इसके अलावा देखिए कॉलोनियल पीरियड में अगर हम आएंगे तो कॉलोनियल पीरियड का जो पेंटिंग है ना ब्रिटिश पीरियड का, तो वो अलग तरीके का है। और इसकी शुरुआत जो ब्रिटिश पेंटिंग थी या कॉलोनियल इंडिया की पेंटिंग है, उसने फोकस किया कि रियलिज्म पे फोकस किया, रियलिज्म। तो यूरोपियन पेंटर्स व्हेन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रियलिज्म, आइडिया ऑफ रियलिज्म का मतलब होता है कि कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाया जाएगा, जो है सो है, मतलब एज सच दिखाइए, एज सच। So the European painters, when they came to India, once Bengal came under the control of the British rule, and after Plassey and Buxar, so then once Bengal fell under the British rule, number of European painters came to India, in particular in Bengal. So European painters introduced the idea of realism, जो है सो है उसको पेंट करो, which means to observe carefully, ध्यान से देखो, जैसा दिख रहा है वैसा पेंट कर दो। अगर चेहरे पे तिल है, चेहरे पे मोल है, मस्सा है, तो वो भी पेंट होगा। मतलब ये आईफोन की तरह पेंट करेंगे, जो है सो दिख रहा है वो कैमरे में, ओप्पो और वीवो की तरह आपको सुंदर बना के और अलग से पूरा पहले ही एडिट करके नहीं दिखाया जाएगा। तो पहले वाले में ना ओप्पो और वीवो वाला पेंटिंग करते थे इंडियंस के, छुपा लेते थे कि अगर चेहरे पे कट मार्क है तो वो नहीं दिखाया जाएगा। तो इस तरह का ये आइडिया ऑफ रियलिज्म में टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड टू डिपिक्ट फेथफुली सो दैट पेंटिंग लुक रियल एंड लाइफ लाइक। ये देखिए, ये बंगाल में डेवलप करता है जब यूरोपियन पेंटर्स इंडिया आते हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं डेनियल्स, चाचा भतीजे थॉमस डेनियल and William Daniel. They came to India in Bengal in 1785, और इन्होंने और इस चीज पे फोकस किया पोर्ट्रेट पेंटिंग पे।
पोर्ट्रेट पेंटिंग में एक चीज ये रखेंगे कि आदमी को देवता नहीं दिखाएंगे, जैसे जहांगीर वांगीर को कैसे दिखा दिया, मान लग रहा है कि भगवान बना पड़ा हुआ है। अंग्रेज ऐसा नहीं करेंगे, ये जो जैसा है वैसे दिखाएंगे। अगर ये वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का गवर्नर जनरल था ना वॉरेन हेस्टिंग, अगर वॉरेन हेस्टिंग और उसके फैमिली मेंबर्स को पेंट करेंगे तो जैसा वॉरेन हेस्टिंग है उसको वैसा ही पेंट कर दिया जाएगा। या बाकी ये यूरोपियन फैमिली का पोर्ट्रेट है, या ये वॉरेन हेस्टिंग के फैमिली, वॉरेन हेस्टिंग और उसके फैमिली मेंबर्स का पोर्ट्रेट है। तो ये इसमें दो खास बातें कि ये रियल और लाइफ लाइक होगा। टू ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व केयरफुली एंड डेपिक्ट faithfully. Observe carefully and depict faithfully. और बंगाल के नवाब होते थे ना, तो बंगाल के नवाबों का कैपिटल था मुर्शिदाबाद। The court at Murshidabad encouraged local miniature artists to absorb the taste and artistic styles of the British. तो बंगाल नवाबों ने अपने पेंटर से बोला कि अंग्रेज पेंटर से सीखो और पेंट करो। तो इसीलिए देखिए यूज ऑफ पर्सपेक्टिव आया। मुर्शिदाबाद के दरबार में जो पेंटिंग डेवलप किया ना, उसमें यूज ऑफ पर्सपेक्टिव यानी कि सेंस ऑफ डिस्टेंस विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर एंड दोज एट अ डिस्टेंस। और इसके अलावा लाइट एंड शेड टू मेक पेंटिंग्स 3 डायमेंशनल, लाइफ लुक लाइक एंड रियल, फिगर्स लुक लाइक एंड रियल। तो 3D, ये 3D इंपैक्ट सीखा जाएगा अंग्रेजों से। ये देखिए बंगाल के दरबार, मुर्शिदाबाद दरबार के नवाब, और ये लोग अंग्रेज पेंटर से, अपने पेंटर्स को बोल रहे हैं कि अंग्रेज पेंटर से सीखो, ये एकदम सही सही बनाते हैं, लाइफ लाइक बनाते हैं। तो सेंस ऑफ डिस्टेंस सीखा गया अंग्रेजों से, और सेंस ऑफ डिस्टेंस के अलावा लाइट एंड शेड टू मेक द फिगर्स लुक लाइक एंड रियल। ये मुर्शिदाबाद कोर्ट में, बंगाल कोर्ट में डेवलप कर रहा है। और कालीघाट पेंटर्स हैं, तो कालीघाट पेंटिंग ना ये ब्रिटिश पीरियड में आम लोगों के बीच में पॉपुलर होगा, कालीघाट पेंटिंग। सो इन 19th century बंगाल विलेजर्स लोकली डेवलप्ड स्क्रॉल पेंटिंग। कागज पे, स्क्रॉल का मतलब हो गया लंबा सा कागज लिया, फिर उस पर पेंटिंग किया, जब सूख गया तो उसको ऐसे गोल 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 ऐसे घुमा के इतना बड़ा रोल बना दिया, रोल बना देते थे। तो इन 19th century Bengal, villagers locally developed scroll painting, painted on a long roll of paper that could be folded, that could be rolled up. These were, ये दरबार में नहीं है, ये आम लोगों के बीच में है, painted by पाटुआ एंड कुम्हार्स। जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे ना, वो लोग जैसे मिट्टी के बर्तन पे तो पेंटिंग कर ही रहे हैं, डेकोरेशन बना ही रहे हैं, लगे हाथों कागज पे भी बना के उसको सुखा के गोल गोल घुमा के रख लिया। इसी को बोलते हैं कालीघाटा पेंटिंग या कालीघाट पेंटिंग। तो अब चूंकि आम लोग हैं, तो आम लोग भी ना देवी देवताओं का ही थीम लेंगे, माइथोलॉजिकल थीम्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस के इमेजेस बनाएंगे। और चूंकि ब्रिटिश पेंटर से इंस्पायर्ड है, तो 3D और लाइट एंड शेड बनाया जाएगा। 3D एंड लाइट एंड शेड, देखिए भगवान शिव और ये माता काली, इनका पेंटिंग रेंडर किया कालीघाट के आर्टिस्ट ने, पेंटर्स ने। ये देखिए सारा कुछ कालीघाट के आर्टिस्ट ने पेंटिंग किया है। कालीघाट आर्टिस्ट प्रोड्यूस इमेजेस ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स। ये ना रिलीजियस थीम्स के अलावा सोशियो पॉलिटिकल थीम्स भी लेते थे, और जो अपने आसपास के चेंजेस हो रहे थे ना उसका मजाक उड़ाते थे। जैसे जो लोग आराम कुर्सी पे, आर्म चेयर पे ऐसे झूल रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं पेंट करके। जो अंग्रेजों की तरह सिगरेट फूंक रहे हैं उनका मजाक बना रहे हैं। अंग्रेज लोग सिगरेट पीने लगे, तो सिगरेट पीते थे, तो यहाँ के लोग देख रहे ये क्या यार धुआं छोड़ रहा है धूम्रदंडी का, ये अरे वाह गजब, तो उसका पेंटिंग कर दिया, मजाक उड़ाया गया। तो अब जो इंडियन अंग्रेजों को देख करके धुआं मारेंगे, छोड़ रहे सुट्टा, चाय सुट्टा, उनका पेंटिंग करके मजाक उड़ाएगा। अच्छा बेटा चाय सुट्टा अंग्रेज बने फिर रहे हो, तो उसकी पेंटिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो इमेजेस वर इनग्राव्ड ऑन वुडन ब्लॉक। लेकिन गरीब लोग हैं
तो अब ये कितना पेंटिंग करेंगे, इनको क्या करेंगे, तो ये लकड़ी का ब्लॉक लेंगे, लकड़ी के ब्लॉक पे जो भी पेंटिंग करना है वो खुरुच खुरुच के पहले दृश्य बना लेंगे और फिर उसमें रंग लगा के ठप्पा 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 कागज पे मार के कई कॉपीज बना देंगे और तब लोकल सर्कल में जारी हो जाएगा, बिकने के लिए चला जाएगा। तो they mocked at changes they saw around, such as who spoke in English and adopted Western habits, smoked cigarette or sat on armed chairs. Images were engraved in wooden block and many copies were produced from the same block. Later on, mechanical printing press, तब तक प्रिंटिंग प्रेस आ गया, छापा खाना, और प्रिंटिंग प्रेस से धड़ाधड़ ये लोग पेंटिंग छाप के बेचने लगे मार्केट में क्योंकि सस्ता पड़ता था फिर, ठीक है ना। तो ये कालीघाट आर्टिस्ट के पेंटिंग्स हैं। और फिर तब तक नेशनल आर्ट आ जाएगा, नेशनल आर्ट, क्योंकि अब जैसे जैसे देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट जोर पकड़ेगा, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जोर पकड़ेगा तो धीरे धीरे करके नेशनलिज्म आने लगेगा, पेंटिंग में नेशनलिज्म आने लगेगा। तो एक बहुत बड़े पेंटर हुए, त्रावणकोर के महाराजा फैमिली से थे राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा बहुत ग्रेट पेंटर हुए हमारे कंट्री में। और राजा रवि वर्मा की खास बात ये थी कि ये इंडियन माइथोलॉजिकल थीम्स, रिलीजियस थीम्स से सब्जेक्ट मैटर उठाते थे। नल दमयंती की कथा, अर्जुन और सुभद्रा, या फिर माँ सरस्वती, वीणा वादिनी वरदे हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, उनको पेंट किया जाएगा। लेकिन जैसे रामायण हो गया या महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, और जैसे ख्यालों में खोई हुई एक स्त्री, लेडी लॉस्ट इन द थॉट्स, अ लेडी टॉकिंग टू अ स्वान, हंस से बातें करती हुई लेडी, या अर्जुन और सुभद्रा का पेंटिंग, इंद्रजीत, मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को वो क्या कहते हैं वो शक्ति बाण मार दिया था तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, तो पूरा पेंट किया जा रहा है। इंद्रजीत, इंद्र भगवान को मेघनाथ ने हरा दिया था, उसका पेंटिंग बना रहे हैं। शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका, ऋषि विश्वामित्रा की पुत्री शकुंतला का पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाया जा रहा है। लेकिन राजा रवि वर्मा में ना एक लिमिटेशन था। राजा रवि वर्मा का सब्जेक्ट मैटर लोकल था, इंडियन सब्जेक्ट मैटर था, लेकिन ट्रीटमेंट यूरोपियन था, स्टाइल में यूरोपियन थे। तो तभी 1905 में हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं कि 1905 में स्वदेशी पेंटिंग आ गया, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, और स्वदेशी मूवमेंट के शुरू होते ही पेंटिंग स्वदेशी हो जाएगी। तो राजा रवि वर्मा को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बोले नहीं नहीं, राजा रवि वर्मा का ठीक है सब्जेक्ट मैटर तो अपना है, लेकिन ट्रीटमेंट इनका स्वदेशी वाला, यूरोपियन वाला स्टाइल है, तो हम राजा रवि वर्मा से इंस्पायरेशन नहीं लेंगे, हम राजा रवि वर्मा को रिजेक्ट करते हैं। तो स्वदेशी पेंटर्स ने, जो स्वदेशी मूवमेंट के प्रोडक्ट्स थे पेंटर्स, उन्होंने राजा रवि वर्मा का पेंटिंग स्टाइल रिजेक्ट कर दिया, बीइंग इमिटेटिव एंड वेस्टर्नाइज्ड, and they drew inspiration from Ajanta, Ellora, Mughal, Rajputana painting styles। तो इसी तरह से राजा रवि वर्मा रिजेक्ट हो गए और स्वदेशी मूवमेंट में महान चित्रकार हुए अवनींद्र नाथ टैगोर और उनके शिष्य हुए नंदलाल बोस। इन्होंने राजा रवि वर्मा के पेंटिंग स्टाइल को रिजेक्ट कर दिया, बोला ये तो नकल उतारते हैं, यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल है। अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट मैटर आपका लोकल है, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि आप वेस्ट से इंस्पायर्ड हो। तो अवनींद्र नाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, फ्रीडम फाइटर, ग्रेट पेंटर, स्वदेशी पेंटर। तो अवनींद्र नाथ टैगोर एंड हिज ग्रेट डिसाइपल नंदलाल बोस रिजेक्टेड द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा एज नकल उतारने वाला, westernized, imitative and westernized, and declared unsuitable, and they insisted to draw inspiration from Ajanta, Mughal and Rajputana mural and miniature painting styles। ये खास बात है, देखिए ये सब है। और ये है अन्नपूर्णा भारत माता, अन्नपूर्णा भारत माता का पेंटिंग रेंडर किया हुआ है अवनींद्र नाथ टैगोर का, और बाकी ये सब पेंटिंग। तो जो आप देख रहे हैं ना, एक खास चीज देखिए, गेरुआ रंग हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये सैफरन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गेरुआ नहीं, भगवा रंग, सॉरी, भगवा रंग हमारी संस्कृति का, सनातन संस्कृति का प्रतीक है, भारत का प्रतीक है। तो ये ज्यादातर देखिए ना, क्रिम्सन रेड कलर, जो क्षितिज पे लाल रंग या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो लाल रंग आता है ना, खिलता है, वो ज्यादा इस्तेमाल हुआ है इस तरह के पेंटिंग में। और नंदलाल बोस और
उनके बाद इस स्टाइल को आगे बढ़ाया, इसको आप पढ़िएगा थोड़ा सा नोटबुक से, इसमें से जो पीडीएफ आपको मिलेगा, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामा किंकर बैज, ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग इनमें से कुछ लोग शांति निकेतन में रहते थे, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय बनाया था। तो शांति निकेतन के आसपास ना संथाल कबीले के लोग रहते थे। तो इन लोगों ने बोला, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामा किंकर बैज ने, कि ऐसा क्यों ना करते हैं कि हमेशा देवी देवताओं का ही हम लोग चित्र क्यों बनाते हैं, हम लोग वनवासी लोगों का, जनजाति लोगों का चित्र क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने संथाल ट्राइब्समैन का चित्र वगैरह बनाना, पेंट वगैरह बनाना शुरू किया। सो स्केचिंग एंड पेंटिंग दैट कुड कैप्चर नॉट ओनली देयर इमीडिएट एनवायरमेंट, आसपास के पेड़ पौधे पुष्प का, बट ऑल्सो हु लिव्ड देयर। शांति निकेतन हैड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ संथाल tribe at its outskirts, and these artists often painted them and made sculptures based on them. Apart from these themes, literary sources also interested him. तो ये लोग ना लोकल सर्किल में, आसपास के माहौल से, फूल पत्तियां, पेड़ पौधे या जनजाति लोग जो जंगलों में, वनों में रह रहे थे, उनको पेंट करने लगे। तो ये देवी देवताओं को फिर थोड़ा सा हटाया इन्होंने, और लोकल सर्किल की पेंटिंग इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, Okay, rather than making paintings around well-known epics like रामायण और महाभारता या श्रीमद् भागवत गीता या पुराण, इसको नहीं ले रहे हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी was drawn to the lives of medieval saints। ये मध्यकालीन संत कबीरदास, रविदास, सूरदास, तुलसीदास, उन लोगों का पेंटिंग बना रहे हैं, देवी देवताओं का कम। मिडिवल सेंट्स ऑन द वॉल्स ऑफ हिंदी भवन इन शांति निकेतन में ये मिलेगा। दिस मेड अ म्यूरल कॉल्ड मिडिवल सेंट्स इन विच ही charts a history of medieval India through the lives of Tulsidas, Kabir and others, and focuses on their human teaching। देवी देवताओं से हट करके संतों पर और आम लोगों के सर्कल में आया गया। और फिर इसके आगे हम देखते हैं कि अमृता शेरगिल एक पेंटर हुई, बहुत बड़ी पेंटर, 1913, शॉर्ट लिव थी, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रही, यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। हंगेरियन थी, आधा हंगेरियन, इनके माँ बाप में से एक हंगेरियन थे और एक इंडियन थे। और ये बड़ी शानदार फीमेल आर्टिस्ट हुई हैं, हु कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू मॉडर्न इंडियन आर्ट थ्रू द 1930s, 40s and 50s। Unlike others, she was trained in Paris। तो इनका जो शिक्षा दीक्षा पेंटिंग हुआ था, ये पेरिस में हुआ था, एंड had a first hand experience in European modern art trends। तो इनको यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल का बहुत शानदार पकड़ था, ठीक है ना। और इन्होंने फ्यूजन किया कि अजंता और एलोरा वाली स्टाइल, और जो इन्होंने पेरिस में सीखा था इस वेस्टर्न स्टाइल, उसको कैसे मिला करके नया स्टाइल डेवलप किया गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन है अमृता शेरगिल का। और फिर एक ट्रेंड उभरता है, द लिविंग पेंटिंग ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, जो अभी भी चल रहा है, लिविंग आर्ट ट्रेडिशन। उसी में देखिए, ये स्पेसिमेन जो आप देख रहे हैं ना, ये मिथिला पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग का ट्रेडिशन, और ये आज भी जारी है। तो अमंग द मोस्ट वेल नोन कंटेम्परेरी, मतलब हमारे और आपके समय में, पेंटरली आर्ट फॉर्म्स इन मिथिला आर्ट दैट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम अ रीजन इन बिहार कॉल्ड मिथिला। ये विदेह कहलाता था, और मां सीता की जन्मस्थली है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, सीता माता की जन्मस्थली। ऑल्सो कॉल्ड मधुबनी, यही मिथिला ही पेंटिंग को मधुबनी, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसने गाने वाने में भी आता है, मधुबन में कन्हैया कभी गोपी से मिले, मधुबनी, मधुबन, मधु मतलब शहद, ठीक है। विदेह एंड बर्थ प्लेस ऑफ सीता, ऑल्सो कॉल्ड द मधुबनी पेंटिंग। मिथिला और मधुबनी एक ही है। आफ्टर द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, इट इज अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फोक आर्ट, स्थानीय जन फोक आर्ट tradition, and it is presumed that for centuries women living in this region have painted figures and designs on the walls of their
mud houses for ceremonial occasions. ये मिट्टी के खपड़ैल वाले मकान में लोग रहते थे ज्यादातर तो पहले, तो ये मिट्टी के दीवारों पर ही चित्रकारी औरतें किया करती थी, बाद में फिर सब लोग करने लगे। पर्टिकुलरली वेडिंग्स, खास तौर पे वेडिंग, शादी ब्याह या तीज त्योहारों के मौके पे दीवारों को सजाया जाता था। वेडिंग में देते हैं कि जो कोहबर बोलते हैं, आप बिहार के होंगे तो जानते होंगे कोहबर, आप कमेंट बॉक्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर दे सकते हैं हमें, ठीक है ना, वेडिंग्स। बट पीपल ऑफ दिस एरिया सी द ओरिजिन ऑफ दिस आर्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रिंसेस सीता। माता सीता से ये जोड़ते हैं लोग इस पेंटिंग स्टाइल का ओरिजिन, जो जिनका विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हुआ था। So these paintings characterized by bright color, चटक रंग इस्तेमाल होते हैं इसमें, and are largely painted in 3 areas of the house. घर में ही ज्यादातर ये मिट्टी की दीवारों पर पेंट किया गया। तो ये स्पेसिमेंस हैं मिथिला या मधुबनी पेंटिंग, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड कलरफुल पेंटिंग हाउएवर इज डन ऑन द पार्ट ऑफ हाउस नोन एज द कोहबर घर और इनर रूम। कोहबर घर, अंदर का कमरा, वेयर मैग्निफिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोहबर कमल with dandi stalk in full bloom, having metaphorical and tantric connotation, along with images of gods and goddesses, are painted on freshly plastered wall of the room. जो कमरे है ना मिट्टी के मकान का, उसमें जो लेप किया गया उस पे पेंट किया जाता था ताजा ताजा। और थीम जो लिया जाएगा ना, वो चूंकि रिलीजियस भी है इसमें, तो भागवत पुराण, रामायणा, स्टोरी ऑफ शिवा पार्वती, भगवान शिव, मां पार्वती, दुर्गा मां, काली मां और श्री कृष्ण भगवान की रास लीला, राधा और कृष्णा की रास लीला। मिथिला आर्टिस्ट डू नॉट लाइक एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह नहीं छोड़ते हैं, जितने में पेंटिंग करेंगे पूरा भर देंगे। देखिए एम्प्टी स्पेस नहीं है, पूरे में कलर भरा हुआ है, ये खास बात है, ठीक है ना। और पंछी, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, फिश, स्नेक्स, सन गॉड, मून, यहां पे देखिए ना, इसमें इधर वाले में ये सन गॉड है, यहां पे 2 मछलियां ऐसे दिख रहा है, ये एक और ये ऐसे 2 मछलियां हैं, जगह नहीं छोड़ते हैं। ये बत्तख जैसा दिख रहा है, ये जगह नहीं छोड़ते। सिंबॉलिक इंटेंट, सिंबलाइजिंग लव, पैशन, फर्टिलिटी, इटर्निटी, वेलबींग, प्रॉस्पेरिटी। तो पहले विमेन इसको पेंट करती थी, फिर बाद में मेन भी इसमें पेंट करने लगे। ये मिथिला या बोलिए मधुबनी। इसके अलावा जो लिविंग ट्रेडिशन है जिसमें चटक, लाल चटक नहीं रंग है, और ये थोड़ा ब्राउनिश या डार्क ब्राउन वाले पेंट शेड में, उसको बोलते हैं वर्ली पेंटिंग। तो वर्ली कॉमनली इनहैबिट द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न महाराष्ट्र। नॉर्दर्न महाराष्ट्र का वर्ली, ठीक है ना, नदर महाराष्ट्र का वेस्ट कोस्ट अराउंड द नॉर्थ, सह्याद्री की पहाड़ियां, सह्याद्री रेंज, विथ अ लार्ज कंसंट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट में। मैरिड वुमेन इसमें ज्यादा प्ले करती थी रोल, सेंट्रल रोल इन creating their most important painting called chalk to mark special occasion, खास टाइम पे, closely associated with the rituals of marriage, विवाह से संबंधित, fertility, बच्चे पैदा करना, उर्वरता, हार्वेस्ट, फसल कटना, एंड न्यू सीजन ऑफ सोइंग, या फसल लगाने का नया मौसम आना। चौक इज डोमिनेटेड बाय फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी, मदर गॉडेस पालाघाट, हु इज चीफली वर्शिप्ड एज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरता की देवी पालाघाट, फर्टिलिटी, एंड रिप्रेजेंट्स द कॉर्न गॉडेस कंसारी। इनका पेंटिंग, ठीक है ये। और इसी तरह से देखिए गोंड पेंटिंग है, मध्य प्रदेश के गोंड ट्राइब्समैन, गोंड पेंटिंग। सो गोंड्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव अ रिच ट्रेडिशन विद देयर chiefs ruling over central India. They worshipped
नेचर, तो जाहिर सी बात है नेचर डोमिनेट करेगा, दे वर्शिप नेचर। पेंटिंग्स ऑफ गोंड्स ऑफ मंडला, मंडला बोलते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, मंडला या मंडला बोलते होंगे, मैं गया नहीं उधर, एंड सराउंडिंग रीजन्स हैव रिसेंटली बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ कलरफुल डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस एंड फ्लोरा। द वोटिव पेंटिंग्स आर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स, ये खास बात ये है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स डन ऑन द वॉल्स ऑफ झोपड़ी हट portraying Bhagwan Sri Krishna with his cows surrounding by gopis with pots on their heads on to which young girls and boys make offering। तो भगवान श्री कृष्ण का सेंट्रल थीम यहाँ पे लिया गया है। गोंड और ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं, लेकिन ये ट्राइबल लोगों का मेन खास तौर पे पेंटिंग है, बड़ा ही शानदार है। और फिर एक है पिथोरो पेंटिंग, पेंटेड बाय रथवा भील्स ऑफ पंचमहल रीजन ऑफ गुजरात एंड झाबुआ इन द रीजनिंग स्टेट नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो गुजरात और मध्य प्रदेश का सटा हुआ एरिया जो गुजरात से है, दीज पेंटिंग्स आर, ये पिथोरो बोलते, दीज पेंटिंग्स आर डन ऑन द वॉल्स ऑफ हाउसेस। ये खास बात है ना, आर्म सर्कल में जो पेंटिंग हुआ वॉल्स ऑफ हाउसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए टू मार्क स्पेशल और थैंक्स गिविंग occasion। These are large wall paintings representing row of numerous and magnificently colored deities depicted as horse riders। देवी देवताओं का घोड़े पे बैठा करके चित्रण किया गया है, ठीक है। ये तो इसको और थोड़ा डिटेल में देखिएगा, इससे ज्यादा डिटेल मत लीजिएगा, ये नोट्स आपके पास चला जाएगा। पित्तोरो पेंटिंग और पट पेंटिंग के विषय में बताया गया। ये पट हो गया वर्टिकली पेंटेड पट, ठीक है ना। और ये पटुआ परफॉर्मर्स फॉर परफॉर्मेंस, पटुआ ऑल्सो कॉल्ड चित्रकार who belong to communities are largely settled around मिदनापुर, बीरभूम और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड। तो ये बंगाल, बिहार और झारखंड का पट चित्रकारी, ये पट चित्रकारी डन ऑन फैब्रिक, कपड़े पे, पाम लीफ ताड़ के पत्तों पे, कागज पे, या स्क्रॉल पेंटिंग इज अनदर example of art from practiced in different parts of the country, especially Gujarat and Rajasthan in the west and Odisha and West Bengal in the east। It is also known as पट, पछेड़ी या फड़, इसको कई नाम से जाना गया है। तो पट पेंटिंग ये हो गया, और ये हो गया हमारा डिस्कशन रिलेटेड टू painting, different painting styles originated and developed in our country, broadly classified into two, mural and miniature painting। तो हमने sum up किया prehistorical paintings we have recovered from Bhimbetka caves, then classical age of Indian painting like Ajanta and miniature painting of Pala and Western Indian school, और उसके बाद मुगल मिनिएचर पेंटिंग हमने पढ़ा, फिर राजपूताना, सेंट्रल इंडिया और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग डिस्कस किया, और फिर कॉलोनियल एरा का, अंग्रेजों वाले एरा का पेंटिंग स्टाइल डिस्कस करते हुए हम लिविंग आर्ट ट्रेडिशन पे चले आए जो अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू our discussion on the history of painting in India, and this discussion is sufficient not only for your pre-examination but also for mains examination। तो हमने दोनों perspectives से इसको discuss किया। तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा और देखिएगा जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे देख लीजिएगा नोटबुक से, ये जो PDF आपके पास जाएगा। So that's all for today, think for this session। So अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए आर्ट एंड कल्चर के कुछ नए टॉपिक्स के साथ फॉर संभव बैच। याद रखिएगा, संभव है, बिल्कुल संभव है, हमारे और आपके कड़ी मेहनत से और लगन से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, और मेहनत करिए अच्छे से, हार्ड वर्क करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, मिलते हैं, थैंक्स सो मच, थैंक्स लॉट।